lot of knowledge and etc. But I'm just to give you the way that we have to approach the knowledge. We have to to look towards the knowledge in this way. Like I'm just going to share my screen there, so you himself will realize that yeah, there's something different in it. If you have any question in the mid of the session or in the lot of the session, we'll take the I'll clear all your concept at the end of the session. So if you have any doubt in the mid of the session, just take pen and copy and write your doubt. At the end of the session, you'll ask it from me. Okay, so here we go. Like here my first sentence that I just give you, have a red carpet welcome first of all to all of you, that you give your precious time here. And today we are going to start it from the very basic of the English, and that is from the part of speech. So you all know it very well that what are part of speech क्या होते हैं, इनका English में role क्या होता है हमारे पास, you know it very well. But as I gave you that today we are going to cover in a in a different way. Yeah. Danish, sorry. Excuse me, Yes. Danish. Yes. आपकी screen share नहीं हुई. Please recheck. आपकी screen मुझे नजर नहीं आ रही. आप recheck कर लीजिएगा. Share हो गई है. Okay, sir. Let me check it out. Let me just create this one. Okay. Is it clear now? जी अब clear है. Please continue. Thank you. Okay, perfect. So here we go. First of all, as you give you have a red carpet welcome to all of you, that you give your precious time there. Today we are going to start it from the very basic, and that is from part of speech. As I mentioned, you all know it very well that what are part of speech, what are their roles in English, etc. But we are going to see the part of speech in such a different direction. We are going to cover it. So here, first of all, move toward the part of speech. What are part of speech? It will just hit in your mind, like ये भी आपके mind में hit करे कि part of speech, तो part of speech को हम part of speech कहते ही क्यों हैं? Like इसको हम कुछ और we can call it part of a sentence. Part of sentence में होते हैं part of speech सारे noun, pronoun, adverb, conjunction, preposition, etc. So basically, the basic unit, the core unit of any language, not only concerned to the English. For any language, the core unit is sentence. उसको जो basic unit होता है किसी भी language का वो sentence होता है. उसी sentences में एक language के सारे words उसमें हमारे पास combine हुए होते हैं, and उसी से ही हमारे पास सारे words आते हैं. So basically, part of speech को हम part of sentence भी pronounce कर सकते हैं, इन्हें हम part of sentence भी कह सकते हैं. Because in a sentence we find all the part of speech, certain part of speech, noun, pronoun, etc. And we can also call it part of voice. इसको part of voice भी कहते हैं. You must have heard it about active, passive, etc. वो जो voices होते हैं इन्हें part of voices भी sometimes कहा जाता है. इन्हें part of sentences भी कहा जाता है. Here we have the normal, we use the normal word part of speech. Basically speech में जो होते हैं we call all the speech there. उसमें हमारे पास वो सारे जो होते हैं speeches में हमारे पास cover हो जाते हैं. That's why we can call it, इसे हम part of speech कह सकते हैं. After that, मैं कुछ simple sentence structures दूंगा. I'll take the few simple sentence structures जिसके with the help of this sentence structure I'll try to give you the maximum I have. मैं आपको maximum उसमें देने की कोशिश करूंगा. एक simple sentence structure होगा जिसकी meaning भी आपको आती होंगी. 5 and 6 class का बच्चा easily उसको understand कर सकता है. So here we go toward the next slide.
Yeah, after that we have here I mentioned two sentence structures. I go to market and I help him. I'll tell you about noun, pronoun, adverb, conjunction, interjection, preposition, article, etc. उस पे मैं भी आऊंगा बाद में. First of all, let me clear the basic concepts here. मैं कुछ थोड़े से basic concept clear कर लूं. उसके बाद हम वो सारे पे आएंगे. Noun क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे आया, preposition क्या होता है, etc. But first of all, like if you notice this slide, इसमें हमारे पास two sentences हैं. The first one is here we have like ये हमारे पास है I go to market, simple sentence structures, बिल्कुल easy सा. Second one है हमारे पास I help him. I go to market and I help him. Like ये दोनों हमारे पास simple sentences हैं. But here like एक sentences का हमारे पास जो स्कूल एंड कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि like we have हमारे पास एक simple sentence का structure होता है, subject होता है हमारे पास, then we have a plus word plus object. ये एक simple sentence का हमारे पास structure होता है ना, and इन दोनों में हमें मिल रहा है. We have this one subject, this one we have verb, and this one we have object. ये एक simple sentence structure हमारे पास मिल रहा है. Same like second में भी मेरे पास है subject, verb and object. Now starting from this side, मैं market से start करूँगा. कि like if we have I go to market, मेरे पास ये sentence है I go to market. इसमें ये आप सारों को पता होगा subject क्या है, verb क्या है, object क्या है. इसमें like market is working like object here. Market एक object का काम कर रहा है. But there are a few cases of the object, like either market भी object है and him भी object है. You know it very well. आपको पता है ना कि market भी object है and him भी object है. It's a basics. ये तो basics हैं. But object में हमारे पास types होते हैं ना, like what type of objects they are, what kind of, ये हमारे पास कौन कौन से object हैं. Like market भी object है and him भी object है, no doubt at all. But the first one is working object of preposition. ये देखिए to मेरे पास आ रहा है ना, to is working like preposition. So the market is working like object of preposition. ये मेरे पास preposition का object है. And ये him जो है ये मेरे पास इस verb का object है. इस go को मैं कभी भी ये market assign नहीं कर सकता. ये market कभी go का नहीं होगा. And ये help जो है ये मेरे पास इधर sorry जो him है ये हमारे पास help का object है. Like it's the object of help. And the market is the object of preposition. This one is called like prepositional object. जो object preposition का होता है, preposition के बाद जो होता है, and it's the rules of preposition. The preposition will always take object after himself. कि preposition हमेशा अपने बाद एक preposition का rule है हमारे पास. So जो market है ये हमारे पास इधर preposition का object है, and जो him है ये मेरे पास इधर help का object है. Him is working like object of help. And in दोनों में एक like first of all ये point just note it down. The preposition like the object is of only two things. Object हमारे पास दो चीजों का होता है. First of all we have the object of preposition. Preposition always take an object after himself. And the second one, like object always like the transitive verb, it always take object after himself. ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास दो चीजों का होता है, बेसिक्स दो चीजें होती है हमारे पास. द फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन एंड द सेकंड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. लाइक वर्ब, जो वर्ब होता है उसका भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, एंड जो हमारे पास प्रपोजिशन होता है उसका भी ऑब्जेक्ट होता है. बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स. इन दोनों ऑब्जेक्ट में फर्क होता है. एक जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वी कैन कॉल इट प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एंड जो वर्ब को आता वर्ब के बाद आता है वो हमारे पास वर्ब जो वर्ब के बाद डायरेक्टली आता है वो हमें वर्ब की क्वालिटी लाइक वर्ब के बारे में बताता है कि इज इट अ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. इट्स लाइक एक सिंपल से सेंटेंस में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इधर. लाइक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि here these two are object. The one is of the object of preposition and the second one is the object of help. Now the second moving toward the next point here we have, आपने सुना होगा कि like we have direct object, indirect object, etc. ये सारे हमारे पास होते हैं ना कि
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. So now clear it with this simple like sentences. हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. We used indirect object for the living things, and we use direct object for non-living things. Like here, as I mentioned, I go to market. So market मेरे पास direct object या indirect object. So मैं market को देखूंगा कि whether it's like living thing or non-living thing. Market is working like non-living thing. Like market मेरे पास non-living thing है ना. Like तो market is a direct object. ये मेरे पास direct object है. जो him है, him is working like indirect object. him मेरे पास indirect object है. Why indirect object? Because it's a living thing. Like मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि I help. So what I help? I help. So what I help? मुझे I help के बाद कुछ चाहिए है ना? Because help is a transitive verb. So help is किसी बंदे के बारे में बता रहा है कि मैंने like उसकी मदद की. So living thing है. So it's working like ये मेरे पास काम कर रहा है. एक like it's an indirect object जो living thing को बताता है, वो मेरे पास indirect object होता है. Now let me revise it once again. I gave you two concepts here. The first one, that object is of two things. Object दो चीजों को होता है. Number first, किस चीज का होता है object? Object मेरे पास होता है या तो preposition का होता है या verb का होता है. Second one मैंने आपको बताया, object direct होता है और indirect होता है. Like या तो हमारे पास direct object आता है या indirect object आता है. So जो indirect object आता है वो हम living things के लिए use करते हैं. Sorry, indirect object we use for the living things, and the direct object we use it for non-living things. And moving toward the next point, जो third point है, object हमारे पास like या noun होता है या pronoun होता है. इसके अलावा object हमारे पास कुछ नहीं होता. Like आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि हम जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं हम कहते हैं कि यार दिस वन इज ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के फिर आगे टू टाइप्स होती हैं. लाइक ऑब्जेक्ट इज वर्किंग आइदर अ नाउन और इट्स आल्सो वर्किंग लाइक अ प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट या तो मेरे पास नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, जैसे कि आपको इस सेंटेंस में नजर आ भी रहा है. आई गो टू मार्केट. सो मार्केट इज वर्किंग लाइक अ नाउन डियर. मार्केट मेरे पास इधर एक नाउन है. So let me mute him. So market is working like a noun dear. Market मेरे पास इधर एक noun है तो object ही, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि object हमारे पास या noun होता है या pronoun होता है. And the second one, him जो है, him भी मेरे पास object है, लेकिन क्या ये मेरे पास noun है? Not at all. It's working like pronoun. ये मेरे पास ये pronoun है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि object दो चीजों का होता है, दो चीजें होती है ना, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. इसके अलावा ऑब्जेक्ट कोई और चीज नहीं हो सकती. ऑब्जेक्ट सिर्फ दो चीजें होती है, या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. तो हिम जो है इधर मेरे पास, ये मेरे पास प्रोनाउन है. Is it clear? I gave you three concepts from a very like simple sentence structure. The first one is I go to market. मैंने आपको बताया कि जो like preposition and verb का होता है, object इनके बाद आएगा हमेशा object. And the second one is object either be direct or indirect. And the third one is object is like it will be either be noun or pronoun. And moving toward the fourth concept, object अपने से पहले आने वाली verb के बारे में हमें बताता है. Like object tell us about the verb coming before the object. Object से पहले जो verb आता है, object उसको भी qualify करता है कि whether the verb is transitive और intransitive. कि ऑब्जेक्ट लाइक मेरे पास एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया, उससे मैं वर्ब को भी देख सकता हूँ कि इससे पहले आने वाला वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. लाइक all the verbs carrying object after himself, they are called transitive verbs, and all the verb they don't need any object after himself, we can call them intransitive verb. You don't need to worry about all these concepts. I just start from the basics. अभी हम सारा कवर करेंगे, जैसे ही आगे जाएंगे हम verbs के टॉपिक में जाएंगे. Actually the verb is a very deep topic in himself. वो एक बहुत बड़ा deep topic है, उसमें हम सारे कवर करेंगे.
बट हियर आई जस्ट गिव यू द हिंट्स दियर कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लाइक जैसे आपको भी नजर आ रहा होगा, इधर मेरे पास दो सेंटेंसेस हैं, दो वर्ब्स हैं, एक गो है एंड एक हेल्प है। सो देखिए, अगर इफ यू फोकस ऑन द फर्स्ट वन के बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ये मार्केट ऑब्जेक्ट तो है, बट एज आई गिव यू दैट मार्केट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ गो। मार्केट गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, मार्केट ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, टू का। बिकॉज मैंने कहा ना, प्रपोजिशन ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट के बगैर आता ही नहीं है। विदाउट फ्यू एक्सेप्शंस प्रपोजिशन के एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है मार्केट, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि गो का। सो गो मेरे पास इधर फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव। सो इट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं इसको इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके बाद मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। गो के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे गो कह सके कि या आई एम अ ट्रांजिटिव वर्ब। Not at all. Go is working like intransitive verb. Here, moving toward the next one, I help him. अभी मैं help को देख लूं तो help का तो ऑब्जेक्ट है। हेल्प के पास तो हिम है ना। लाइक हेल्प का जो फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, वो हिम होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का दोस्त हिम होता है, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सो हेल्प के बाद उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसको उसका फ्रेंड मिल रहा है। सो भी हेल्प कह सकता है कि या आई एम अ ट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक ट्रांजिटिव वर्ब हूं। मैं उससे पूछूंगा कि व्हाई यू आर ट्रांजिटिव वर्ब। वो कहेगा बिकॉज आई हैव एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम ट्रांजिटिव वर्ब। इसी वजह से वो ट्रांजिटिव वर्ब से। सो देखिए कितना सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एंड लाइक ये आप सारों ने लाइक इसको मुझे ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है। लाइक इट्स क्वाइट सिंपल। एक 5th क्लास का बच्चा इजीली इसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बट देयर लाइज अ डीप कॉन्सेप्ट्स इन दिस सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमने 4 कॉन्सेप्ट समझे। लाइक इन इससे अलावा और भी हमारे पास है। एक ऑब्जेक्ट लाइक अ टाइनी वर्ड ऑब्जेक्ट, जिसको हम बहुत ही लाइक एक हल्का सा वर्ड लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दे सकता है। लाइक इट्स टेल अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट टेल अबाउट द स्टेट ऑफ द वर्ब, whether the verb is a transitive verb or intransitive verb. Object always come after preposition or a transitive verb. So these are I just like ये मैंने कहे हैं। like here we have a simple two में मैंने आपको इधर 4 concepts दिए हैं। Now moving toward the like ये an equation of an object। मैंने ऑब्जेक्ट इधर एक इक्वेशन क्रिएट किया है। इसमें कुछ नया नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस स्लाइड। इसमें वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू मेक द नोट्स बाय योर लाइक हैंड्स। अपने जितने आप हाथों से लिखेंगे तो इट विल बी फिक्स इन योर मेमोरी फॉर लॉन्ग। वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। लाइक ये लाइक it's okay, quite good to like attend the lecture and to memorize it at that time, but if you note it down, so it will be stored in your memory for long. So इधर like वो सिंपल इक्वेशन है इसकी। आप इसी तरह इक्वेशंस बनाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह एक पेज लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए। लाइक मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट लाइक आइदर बी अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट मेरे पास या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट मेरे पास कोई तीसरी चीज नहीं होगी कि नहीं अभी एडवर्ब आ जाए तो वो कहे कि या आई एम ऑब्जेक्ट। नॉट एट ऑल। प्रपोजिशन कह दे वो आई एम ऑब्जेक्ट। नॉट एट ऑल। ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 चीजें होंगी, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देन ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 चीजों के बाद आएगा। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स रूल्स। आई एम नॉट मूविंग टू द डीप। अभी उसके बिल्कुल डीप में मैं नहीं जा रहा। दिस बेसिक्स रूल। ऑब्जेक्ट 2 चीजों के बाद आएगा, या तो प्रपोजिशन के बाद आएगा या वर्ब के बाद आएगा। 101% आएगा। प्रपोजिशन के बाद तो आएगा ही आएगा। वर्ब में लाइक देयर इज सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं आएगा। सो ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर प्रपोजिशन और वर्ब। देन तीसरी मैंने मेंशन की है कि ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग थिंग को क्वालिफाई करेगा। दे विल क्वालिफाई द लिविंग थिंग।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा जब कोई नॉन लिविंग के बारे में बात करे, मैंने क्वालिफाइड लाइक द नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा। एंड मैंने फोर्थ पॉइंट इधर एक मेंशन किया था कि ऑब्जेक्ट आल्सो टेल अस अबाउट द वर्ब, कि अगर किसी वर्ब के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, if we have object directly after the verb, so it makes the verb transitive verb। वो ऑब्जेक्ट वर्ब की स्टेट को चेंज कर लेता है। वो जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अगर वर्ब के बाद आ जाए तो वो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बना लेता है। बट अगर वर्ब आ जाए, बीच में प्रपोजिशन आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, सो ऑब्जेक्ट फिर उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कह देता है। लाइक फिर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिर प्रपोजिशन का हो जाता है, उसे हम फिर प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक ये हमारे पास इसकी एक सिंपल इक्वेशन थी, like object, if object directly comes after the verb and normally it's come after the verb, अगर डायरेक्ट वर्ब के बाद आ जाए तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड अगर बीच में कोई प्रपोजिशन आ जाए, वी हैव वर्ब, वी हैव प्रपोजिशन, देन वी हैव ऑब्जेक्ट, देन लाइक द ऑब्जेक्ट फिर वर्ब के साथ उसका कोई काम नहीं होता, वो वर्ब एक इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, फिर वो ऑब्जेक्ट फिर प्रपोजिशन का हो जाता है। कोई मैंने कहा ना प्रपोजिशन के बाद तो सर्टेनिटी है कि 100% ऑब्जेक्ट आया है ये आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट फिर बन जाता है हमारे पास प्रपोजिशन का। ओके ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। Let me check it out. Okay, after that we have we have same simple sentence structures here। देखिए एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें बहुत कुछ अभी वी हैव हियर a lot of things we have to learn from a simple sentence structure। मैं इस पूरे स्लाइड के एंड तक ये दो ही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दूंगा, देयर आर वेरी सिंपल, जो बहुत ही सिंपल हैं। अभी इसमें हियर लेट्स मूव के इसमें और हमारे पास क्या है, हियर वी हैव आई गो टू मार्केट। मैंने इधर कहा कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है कि प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इफ आई जस्ट रिमूव द मार्केट फ्रॉम हियर, अगर इधर से मैं मार्केट को रिमूव कर लूं, सो इज इट मेक अ सेंस? इज दिस सेंटेंस मेक अ सेंस? क्या ये सेंटेंस फिर हमारे पास कोई सेंस देता है? नॉट एट ऑल, बिकॉज आई गो टू, where you go to, if I ask you कि I go to, so where you go to, मुझे चाहिए ना उसका वो where का मुझे आंसर चाहिए। अगर मुझसे मैं अभी कह दूं कि I go to, तो मुझे कोई पूछेगा ना कि where you go to, तुम किधर गए थे। so here we have I go, yeah, I'm going toward this one, but here we have I go to। वो सेंस क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ दिस टू। मेरे पास टू क्या है? एक प्रपोजिशन है। मैंने आपको ऊपर रूल दिया ना, नोट इट डाउन, कि प्रपोजिशन ऑलवेज नीड ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही होती है, प्रपोजिशन के एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आई गो टू, तो प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रपोजिशन क्या कहता है कि इफ आई डोंट हैव ऑब्जेक्ट, I'll make the whole sentence structures false, I'll make the whole sentence structure incorrect। preposition कहते हैं अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो मैं बड़ा खतरनाक बंदा हूं, मैं आपका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही खराब कर दूंगा। नाउ इट्स अप टू यू, अगर मुझे ऑब्जेक्ट देते हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपका ठीक कर दूंगा। बट इफ यू डोंट गिव मी द ऑब्जेक्ट, अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, सो मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक सेंस नहीं बनाऊंगा, उसकी एक सेंस नहीं होगी आपके पास, पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही खराब कर दूंगा। सेम इन द सेकेंड वन, मैंने उससे हिम को हटा दिया है, आई हेल्प हिम, मैंने हेल्प से हिम को हटा दिया है। एंड हेल्प एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट आपस में दे आर फ्रेंड्स, सो दे आर क्लोज फ्रेंड, तो इन प्रपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सेम हेल्प एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये भी फ्रेंड्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सो अगर मैं कहूँ आई हेल्प हिम,
सॉरी अगर मैं सिर्फ इस तरह कहूँ आई हेल्प, इज इट मेक अ सेंस? I help. If I just pronounce like I help, like most time like when we speak etc, when we pronounce sentence structures, जब हम sentence structures pronounce करते हैं, no okay, तो we can use like I help etc, हम इस तरह use कर सकते हैं। वो एक word हम कहा जाते हैं, उसका object हम गायब कर जाते हैं in speaking, but here in grammar we have to notice the nitty gritty of the language। हमने छोटी छोटी बारीकियों को भी लैंग्वेज की बारीकियों पर फोकस करना होता है। आई हेल्प, अभी इधर हेल्प का मैं ऑब्जेक्ट मैंने खत्म कर दिया है, आई रिमूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द हेल्प। जब हेल्प का रिमूव मैंने ऑब्जेक्ट खत्म कर लिया है, एंड हेल्प एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़नी है हर हाल में। ये भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमारे पास सेंटेंस का एक सेंस नहीं बनेगा। आई हेल्प, टू whom you help, like whom you help, आपने किसकी हेल्प की, बस आई हेल्प, सो इट्स नॉट मेक अ सेंस। I help him, I help them, I help her, I help the whole community, etc. I help the class, I help the teacher, I help the student. You have to put the object, you know, हर एक सेंस में मैं एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं उसके बाद। सो ये हमारे पास ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब की एक पहचान होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज कैरीज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिमसेल्फ। वो एक ऑब्जेक्ट लेता है, इधर मैंने उसका ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया है, सो वो उसके एक सेंस नहीं बन रही। It's not make any sense there. So that's why the object is necessary after the preposition and transitive verb, as I mentioned it in my first slide. Now moving toward the next one, let me clear it. इन दोनों से मैंने like हाँ, अगर मैं भी इधर ऐसे कर दूं, if I remove to, इस टू की वजह से तो लाइक मैंने टू से ऑब्जेक्ट ले लिया है, सो टू ने मुझे क्या कहा, अगर आप मुझसे ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो मैं आपको लाइक सारा स्ट्रक्चर ही खराब कर दूंगा। ओके, लेट मी क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा मैं, बट लाइक आई एम गोइंग टुवर्ड्स योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा, बट हियर लाइक टू मेरे पास एक वो कर रहा था ना, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, टू मुझे कह रहा था अगर मुझसे ऑब्जेक्ट लोगे तो मैं पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर खत्म करूंगा। तो मैंने टू को क्या कहा कि आप मेरा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्यों खत्म करेंगे, मैं आपको ही खत्म करता हूँ। नाउ टेल मी, अभी क्या करेंगे? टू ने मुझे कहा कि मैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब करूंगा, तो मैंने टू को ही खत्म कर दिया, क्योंकि टू ही तो मसला क्रिएट कर रहा था। सो नाउ वी लेफ्ट आई गो, मेरे पास रह गया है आई गो। इज इट मेक अ सेंस? आई गो, आई गो, लाइक इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास जो आई गो होता है वो एक कंप्लीट एक सेंटेंस होता है। आई गो, लाइक हियर इफ आई लाइक, या आई गो मेक अ सेंस, इट्स कंप्लीटली मेक अ सेंस। इसके बाद अगर मैं ये भी आई गो जस्ट पूरा सेंटेंस नहीं है, इफ आई पुट अ, या आई पुट देयर, या मैंने इधर एक लाइक मैंने सेंटेंस को खत्म कर दिया, तो उधर लाइक मैंने पॉइंट पुट कर दिया उधर उसका। सो आई गो एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वी यूज इट in our day-to-day life. I go, like you can use it in our future, etc. I'm not like going to mix it up in the sentences, etc. But I go is a complete sentence structure. We find here we have a subject, then we have verb. Like the object is optional. एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट एंड वर्ब आ सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता। लाइक मैंने कहा आई गो, ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है मेरे पास। सेम लाइक आई थिंक आई जस्ट मेंशन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन भी की है। लेट्स मूव टुवर्ड इट। एज आई रिमूव दिस टू, या मैंने टू को खत्म कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई रिमूव द टू, so I only left I go. It's a complete sentence structure. Then like here we have ये हमारे पास एक concept इधर इसमें next भी है। The first one is I go to market, he go to market, we go to market yesterday. Would you please confirm me in the like comment section that whether which sentence structure is correct in all these? कौन सा sentence structure इसमें मेरे पास correct sentence structure है? Like
Sentence number 1, 2, 1 and 3rd, first. Okay, like here we have I go to market, he go to market, we go to market yesterday. आपको इन सारों का पता है ना, like simple sentence structures हैं, हम use करते हैं in day to day life, we use it. 1 and 3, okay. Okay, here we have like I go to market, he go to market, we go to market yesterday. Let me give you that which sentence structure is correct. The first sentence structure is correct in this. इसमें जो correct है वो सिर्फ first one है. Second one is a wrong, as well as third one is also a wrong sentence structure. Both the 2 and 3 sentence structures are wrong. So अभी मैं आपको बताता हूँ कि how you judge the sentence structures. आप एक sentence structure को किस तरह judge कर सकते हैं कि like whether it's a correct or wrong. ऊपर जितने भी मैंने आपके concepts दिए, they are the basic concepts. वो basic concepts थे about, मैंने object से शुरू किया है ना, I'm only on the object, the only tiny thing in the English. एक छोटा सा एक जो हमारे पास जो noun का and like we have object जो इसमें noun and pronoun आते हैं, मैंने से अभी मैं ऑब्जेक्ट पे हूँ, आगे अभी मैं नहीं गया. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टच एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच. मैंने भी किसी को भी टच नहीं किया. आई एम ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट हियर. मैं भी उस एक ऑब्जेक्ट पे हूँ, बट हियर आई एम गोइंग टुवर्ड लाइक इधर मैंने कहा कि आई गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट यस्टरडे. इसमें मैंने कहा कि फर्स्ट वन करेक्ट है, सो मुझे तो थर्ड वाला भी थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है. व्हाट्स रॉन्ग विद द थर्ड वन? What's wrong with the second one? इतना सही तो है, इसमें गलत क्या है? He go to market सही नहीं है क्या? Like we only like we face the problems. मैंने बहुत से like लोगों को सुना है, and I himself like when I was at the initial stage, I himself a lot of problems in this. Okay, कि हमें like जो verb होता है, as I mentioned in the starting of the lecture, verb himself is a very very deep topic. वर्ब अपने आप में एक बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है. लाइक अगर आपको जस्ट वर्ब समझ आ गई ना, सो यू विल लाइक हिट ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच थ्रू द वर्ब. एक वर्ब से आप सारे पार्ट ऑफ स्पीच को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. वो वर्ब आपको खुद बताएगा कि आई एम द वर्ब, सो दिस वन इज वर्किंग लाइक दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज प्रपोजिशन. वर्ब आपको खुद बताएगा, बट वो हम सारा कवर करेंगे. बट हियर टुडे वी आर ऑन द बेसिक. हियर वी हैव I go to market, he go to market मैंने लिखा है, हालांकि इधर मुझे goes लिखना चाहिए था. And इधर मैंने लिखा है we go to market yesterday. मेरे पास आया है एंड में yesterday. I'm talking about the past. We went to market. So अभी मुझे मैंने तो अभी आपको कह दिया है, इस तरह तो कोई भी आपको कह सकता है. What's the reason of this class then? आप कहीं भी चले जाएं, आपको मैंने जो कहा है आपको सारे कह सकते हैं. But now give me the reason. मैं आपको it's like important that you have to answer the why, not what. What का आंसर तो सारा को आता है, आपको why का आंसर देना चाहिए. आपको इस तरह ये पढ़ने चाहिए कि आप आगे वाले को ये डिलीवर कर सकें ये लेक्चर. इस तरह से आपने ये ग्रेस्प अप करना है. और अगर वो उसमें कोई पूछे कि why this one is like this, why this word is working like this, so you have to answer the why. आपको उस why का आंसर देंगे, आपको उस why का आंसर देना चाहिए इसमें. Now let me give you the answer of the why. go. हमें किस तरह पता चलेगा कि हम कौन सा वर्ब लगाएंगे इधर? goes लगाएंगे, go लगाएंगे, went लगाएंगे, क्या लगाएंगे? So how we come to know? I'm giving the next rule here that verb is only dependent on two things. In the whole English language, whether you call it English literature, whether you call it English language, whatever you call it, in the whole English building, जो इंग्लिश की पूरी इमारत होती है, उसमें जो वर्ब होता है उसका सिर्फ दो चीजों से काम होता है. वर्ब कहता है कि I don't know who is object, I don't know who is subject, who is preposition, I don't know who is conjunction. वर्ब को नहीं पता कि ये सारे क्या हैं, who are their all their fellows are, etc. वर्ब कहता है कि I only know two things. The first one, I know subject, and the second one, I only know tense. वर्ब सिर्फ दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है. वर्ब सिर्फ दो ही चीजों का कहना मानता है. एक वर्ब कहना मानता है सब्जेक्ट का,
एक वर्ब कहना मानता है टेंस का। लाइक ये दो चीजें जो करते हैं वही वर्ब का रोल होता है। वर्ब इन्हीं दो चीजों से चेंज होता है। लाइक अगर मैं कहूं कि लाइक आई गो टू मार्केट, में आई हटाऊंगा तो गो चेंज होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि वर्ब का सिर्फ सब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। इसके इस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर से कोई काम ही नहीं। आप उधर कुछ भी लगा लें, आई गो टू मार्केट, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, whether you want to put anything in the object, verb never concerned with the object, verb only concerned with subject। verb का सिर्फ काम होता है सब्जेक्ट के साथ। इन दूसरा टेंस के साथ वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस डिपेंडेंट होता है। नोट इट डाउन, इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग द वर्ब। जब आप कोई वर्ब को सेलेक्ट करेंगे and you face the difficulties, you stuck there whether which form of verb I have to use it, and whether I use singular verb or plural verb. So just look toward the subject of the sentence। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा उसी लिहाज से हम वर्ब लगाएंगे, एंड जो टेंस होगा उसी लिहाज से हम वर्ब लगाएंगे। लाइक if we have a singular subject, so we will put singular verb. If we have a plural subject, then we have to put the plural verb there। singular subject हमेशा singular verb लेगा, plural subject हमेशा plural verb लेगा। That's the rule। ये रूल है वर्ब के, कि मैंने आपको कहा ना वर्ब is only dependent on two things, we have subject and then we have tense। so देखिए मैंने इधर I लगाया है तो मैंने go लगा लिया, मैंने he लगाया है so मैंने क्या लगाया, मुझे क्या लगाना चाहिए, मेरे पास सब्जेक्ट चेंज हुआ है। here we have subject is a third person singular। ये लाइक हम बात करेंगे इसकी भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारा हमारे पास इस कोर्स में कवर अप होगा। बट लेट मी ये जस्ट बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ उसके जस्ट। लाइक इधर हमारे पास गो का मेरे पास गोज बन जाएगा, फिर ये गो के साथ मैं ई एस लगा लूंगा। वाई में ई एस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ही मेरे पास सिंगुलर है, एंड सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का आना लाजमी है। सो मैंने कहा ना गो कहता है, गो एक वर्ब है कि मैं तो ही को ही फॉलो करूंगा, ही मेरा दोस्त है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो मैं ही को फॉलो करूंगा, जैसे वो होगा सब्जेक्ट होगा वैसे मैं हूंगा। एंड लेट मी गिव यू द रूल देयर। अभी किस तरह पता चलेगा कि ये वर्ब सिंगुलर है, ये वर्ब प्लूरल है। सो द सेम रूल, जैसे ही हमने स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ा है ना, कि हमने स्कूल एंड कॉलेज में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, कि जब उनके साथ एस या ई एस लगता है तो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल बन जाता है। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बहुत केसेस में जब हमारे पास सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है सो हम उस सब्जेक्ट को प्लूरल कंसिडर करते हैं। एस या ई एस नहीं होता तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं। लाइक नॉट इन द ऑल केसेस बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। जो वर्ब होता है वो इसके अपोजिट होता है। वर्ब के साथ जब एस और ई एस लगता है तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर बन जाता है। अदरवाइज वर्किंग लाइक अ, जो हमारे पास गो है, गो मेरे पास गो इज वर्किंग लाइक अ प्लूरल वर्ब। गो मेरे पास प्लूरल है क्योंकि उसके साथ एस एंड ई एस नहीं है। जब एस एंड ई एस उसके साथ टच होगा सो गो विल बी वर्किंग लाइक अ सिंगुलर वर्ब। वो बिल्कुल सब्जेक्ट के अपोजिट काम करता है। सब्जेक्ट के साथ एस एंड ई एस लग के सब्जेक्ट वर्क्स लाइक अ प्लूरल। जब सब्जेक्ट के साथ एस एंड ई एस लगता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब के साथ एस एंड ई एस लगता है सो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। सेम लाइक ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट इज टेंस डिपेंडेंट एंड वर्ब इज टेंस डिपेंडेंट एंड सब्जेक्ट डिपेंडेंट। तो सब्जेक्ट तो हमने क्लियर कर लिया है कि या हाउ द वर्ब इज सब्जेक्ट डिपेंडेंट, कि वर्ब सब्जेक्ट पे किस तरह डिपेंड करता है। सो दैट्स एग्जांपल कि इस तरह डिपेंड करता है। इफ यू चेंज द सब्जेक्ट देयर, अगर मैं इधर अभी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लगा लूं तो मुझे उधर सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी। एंड लाइक सॉरी आई हैव द सिंगुलर, अगर मैं कोई लाइक सब्जेक्ट चेंज करने से मेरे पास वर्ब चेंज होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द टेंस, अभी इधर मेरे पास वी है, वी इज द प्लूरल, वी एक मेरे पास प्लूरल है एंड प्लूरल वर्ब भी लगा है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन, इसमें हमारे पास गलत क्या है। लाइक वी हैव प्लूरल वर्ब एंड वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट। एज आई मेंशन यू दैट सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब को, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब की रिक्वायर होती है। तो इधर मेरे पास प्लूरल तो है, गो वर्ब एक प्लूरल मेरे पास वर्ब है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस वन। now this sentence lies in the category of tense। भी वर्ब तो सही है लेकिन हमने दो चीजों को देखना होता है।
नाउ पुट इट ऑन द टेंस बॉक्स, अभी उसको टेंस में डाल के देखते हैं। लाइक मेरे पास सिंगुलर वी हैव, सॉरी आई हैव प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई हैव प्लूरल वर्ब, इट्स ओके ऑलराइट, लेकिन मैंने यहाँ तक थोड़ी देखना है। वी गो टू मार्केट, इट्स ओके ऑलराइट, वी गो टू मार्केट, यहाँ तक ठीक है, बट सेंटेंस में ये भी तो है, वी गो टू मार्केट यस्टरडे, वी गो टू मार्केट यस्टरडे, मेरे पास यस्टरडे भी तो आ रहा है। सो मैंने इस यस्टरडे से टेंस को जज करना है कि whether it's a present tense, past tense और future tense. So it's past tense, ये मेरे पास past tense है। So past में मैंने कहा ना कि the verb is only dependent on two things. The first one is subject and the second one is tense. अभी मैं इधर tense के लिहाज से लगाऊंगा, we went to market yesterday, मैं go नहीं लगाऊंगा, मैं इधर went पुट करूंगा, मैं वेंट का यूज करूंगा बिकॉज मेरे पास टेंस चेंज हुआ है, इधर सब्जेक्ट तो चेंज नहीं हुआ बट टेंस चेंज हुआ है, सब्जेक्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। So is this clear? Like we cover only two things in this slide. In this slide, I give you two concepts about the verb. That verb is only dependent on the two things. The first one is verb is dependent on the subject, and the second one is verb is dependent on the tense. Otherwise, verb is completely free from the all part of speech of the English. Verb like doesn't concern with the object. ऑब्जेक्ट आप कुछ भी पुट कर लें, पुट करके देख लीजिए, मार्केट लगाएं, स्कूल लगाएं, मॉस्क लगाएं, टेंपल लगाएं, यू वांट टू पुट एनीवेयर देयर, आप यू वांट टू पुट लाइक एनीथिंग देयर, आप उधर कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसका वर्ब के साथ कोई लेना देना नहीं है। वर्ब ओनली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट एंड इट्स ओनली डिपेंड ऑन टेंस। अगर आपको ये पता लग गया कि कौन सा सब्जेक्ट है एंड कौन सा टेंस है, सो यू विल नेवर फील लाइक यू विल नेवर स्टक इन द वर्ब। आप वर्ड में कभी लाइक यू नेवर स्टक डाउन देयर, आप वर्ड में आपको कहीं ये नहीं गया है मैं भी कौन सा वर्ब लगाऊं, कौन सी फॉर्म लगाऊं, सिंगुलर वर्ब लगाऊं और प्लूरल वर्ब लगाऊं। इफ यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट पुट द सिंगुलर वर्ब, इफ यू हैव प्लूरल सब्जेक्ट पुट द प्लूरल वर्ब। इट्स क्वाइट सिंपल। इज इट क्लियर? Okay, let's move toward the next one where we have, let me clear the slides here. Yeah, after that we have I go to market, ये हमारे पास इसमें sentence जो correct है वो ये वाला ही है, the first one. The both second and third one are incorrect. Why incorrect? Because the first one we don't have any suitable subject, and in the second one we don't have any suitable word for the suitable sentence. After that we have it's a like form, it's an equation of the verb. ये मेरे पास verb की equation है, जैसे मैंने कहा वर्ब हमारे पास वर्ब आइदर वर्किंग लाइक अ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, या ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। लाइक बेसिकली लाइक वर्ब कैरीज अ लॉट ऑफ टाइप्स, वर्ब के बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। इट विल टेक मी लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days टू अंडरस्टैंड यू द वर्ब, कि मैं आपको वर्ब समझाऊं। वर्ब एक बहुत ही डीप टॉपिक है, बट इट्स ओनली द बेसिक्स ऑफ द वर्ब। आज आपने इसके जस्ट टू टाइप्स पढ़े हैं, द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, the second one is intransitive verb, and now you know it very well that what are transitive verbs and what are intransitive verbs. Transitive verbs are all the verbs carrying an object after himself. Intransitive verb are all verbs they don't have any object after himself. After that, verb is only dependent on two things, subject and tense. verb हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे से इंडिपेंडेंट होता है, एक सब्जेक्ट पे एक टेंस पे। द थर्ड वन वी हैव टाइम, लाइक इट्स ऑल कम्स इनटू द बॉक्स ऑफ टेंस। ये फिर हमारे पास टेंसेस में आता है। लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, कि वर्ब सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है। नॉट एट ऑल, सिर्फ टाइम पे नहीं, इट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एक्शंस, कि टाइम एंड एक्शन टेंस के ही पार्ट्स होते हैं दो। लाइक ये इसके फिर हम अगर और सब डिवीजन कर लें तो टेंस में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक टाइम होता है एन एक्शन। नाउ इट्स नॉट आवर टॉपिक एट ऑल, हम अभी टेंसेस नहीं कर रहे, वी आर ओनली अबाउट द वर्ब। सो यू ओनली हैव टू रिमेंबर दैट वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड टेंस, एंड वर्ब इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, like basic two types, transitive verb and intransitive verb. Is this equation clear? Okay, let's move ahead. After that we have the same sentence structure. We again have there, I go to market, I help him.
अभी देखिए वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी कहेंगे कि जस्ट लीव मी अलोन नाउ, अभी आप मुझसे और क्या चाहते हैं, इतना ज्यादा तो आपने मुझ में से वो सारे कॉन्सेप्ट निकाल लिए हैं, अभी मुझ में और बचा ही क्या है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अभी बाकी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमने इनमें से देखनी है। अभी तो कुछ हम अभी जस्ट स्क्रैच द सरफेस, अभी तो हमने स्टार्ट किया है इस सेंटेंसेस को। नाउ अलाउ देखते हैं इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, इसमें कुछ है ही नहीं, एक मैंने डिफिकल्ट सेंटेंस दिया भी नहीं है कि कोई न्यूज़पेपर से उठा के मैंने कोई बहुत ही बड़ा सेंटेंस आपको दे दिया, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। इसमें इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सेंटेंस में मिल रहे हैं, बट व्हेन यू लुकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड द लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें फिर कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गए इंग्लिश के। लाइक इन रियल मीन्स एवरी वर्ड्स कैरीज अ कॉन्सेप्ट, हर वर्ड का अपने कॉन्सेप्ट होता है, उसके हर वर्ड के पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट यू हैव टू स्टडी इट लाइक दिस। आपको उसको इस तरह पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको कह दूं, मैं आपको इस तरह भी तो कह सकता था, this is subject, this is verb, this is preposition, this is object, now move toward the next slide, this is subject, this is verb, this is object, now move toward the next slide। मैं आपको इस तरह भी कह सकता था, but as I gave you that अगर आपको कल ये लेक्चर डिलीवर करना है, सो अगर कोई आपसे पूछ ले कि why, तो आपको उस why का आंसर आना चाहिए कि why this particular word is working like this, ये वर्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्यों है, ये प्रपोजिशन क्यों है। अगर मुझसे पूछ ले कि why this is प्रपोजिशन, मैं कहूंगा कि because it carries an object after himself, इसका एक ऑब्जेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो प्रपोजिशन होता ही होता है। सो हियर वी हैव, अभी देखें लेट्स मूव टुवर्ड, इसमें और हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। आई जस्ट ड्रॉप डाउन टू मार्केट, पिछले सेंटेंस में मैंने जस्ट मार्केट को खत्म किया था, इधर मैं क्या खत्म कर रहा हूं, आई ड्रॉप डाउन टू मार्केट। ये मैंने ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दे दिया है। अगर मैं टू मार्केट को हटा लूं तो इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। सो यू कैन यूज इट इन अ फ्यूचर एज वेल, आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ के, बारिंग सम एक्सेप्शंस, बट आई गो इज अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने टू एंड मार्केट जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन था और उसका ऑब्जेक्ट था जो दो दोस्त थे, उसको मैंने गिरा दिया है नीचे, आई गो। अच्छा, इसके बाद मैं एक काम करता हूं, मैं गो को भी खत्म कर लेता हूं, गो, मेरे पास सिर्फ आई बचता है। इज इट मेक अ सेंस? क्या आई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है? आई एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है? आई ओनली हैव आई, व्हाट डू यू मीन बाय आई? आई एक सेंटेंस नहीं हो सकता है, आई एक लेटर जरूर हो सकता है, एक लेटर जरूर हो सकता है, लेकिन आई एक सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई वर्ब ही नहीं है। लाइक लाइक देखिए, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर कॉन्सेप्ट्स, हर एक वर्ड के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आता है। नाउ आई जस्ट मेरे जहन में एक और कॉन्सेप्ट आ गया है रिलेटेड टू लाइक इफ, देखिए मैंने सारा सारा सब कुछ खत्म कर दिया है, आई रिमूव ऑब्जेक्ट, आई रिमूव प्रपोजिशन। अच्छा, मैं गो को रहने देता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव लाइक आई, मैं आई को खत्म करता हूँ, मैंने आई को खत्म कर लिया। इज इट मेक अ सेंस? गो, मेरे पास सिर्फ गो रह गया है, इज इट मेक अ सेंस? क्या गो एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है? गो इज अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिमसेल्फ, नोट इट डाउन। गो जो है कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इन इंग्लिश लिटरेचर द ओनली स्मॉल सेंटेंस स्ट्रक्चर इज गो। इंग्लिश में सारों से जो छोटा सेंटेंस है वो गो है। लाइक अगर मैं आपको कह दूं कि गो, मैं कह सकता हूँ किसी को गो, गो, लाइक उसके साथ मैं फिर वो जो और लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ गो भी कह दूं सो इट विल मेक अ सेंस। जाओ, जाओ एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सो लाइक इट्स गिव अस द रिजल्ट, इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि आप सेंटेंस से सब कुछ पे खत्म कर दें, लेकिन वर्ब को खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज वर्ब इज द किंग ऑफ द होल पार्ट ऑफ स्पीच। It's not mentioned in any book. I consider it by like for myself that verb is working like a king. आप वर्ब को नहीं खत्म कर सकते, वर्ब को आप खत्म करेंगे किसी भी सेंटेंस से तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाएगा। It will not make any sense. So like I go, और सिर्फ गो भी कह दें तो इट्स स्मॉल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये इंग्लिश का सारा जो स्मॉल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ गो का होता है। आफ्टर दैट लाइक वी हैव
मैंने गो को हटा दिया तो आई जैसे वो सेंटेंस हमारे पास बनता ही नहीं है। हिम को हटा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में मेंशन कर दिया है। अगर मैं इधर से हेल्प को हटा लूं, गो को हटा लूं, तो इट्स नॉट मेक अ सेंस। सिर्फ आई सेंस नहीं करता, आई हेल्प सेंस नहीं देता, मुझे उसके बाद कुछ लगाना चाहिए। आई ओनली हैव वन स्लाइड लेफ्ट देयर। बट देखिए, अगर किसी सेंटेंस में मेरे पास वर्ब भी ना हो तो क्या उस सेंटेंस को मैं सेंटेंस कह सकता हूँ? कैन आई कॉल इट अ सेंटेंस? अगर मैं इधर से लगा लूं कि आई हैम, मैं हेल्प को हटा लूं, अगर किसी सेंटेंस में मेरे पास वर्ब भी ना हो तो वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाता। सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस नीड अ वर्ब। if sentence really want to be a sentence, अगर सेंटेंस चाहता है कि वो सेंटेंस रहे तो उसके एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें वर्ब्स नहीं होता, लेकिन उसे हम सेंटेंस नहीं कहते, उसे हम फ्रेजेस कहते हैं, कुछ वर्ड्स कहते हैं। like let me give you the examples there. like I just draw a chart there about it will be clear, it will be clear your concept about sentence, कि sentence कैसे कहते हैं। like basically every language have their own units, have their own structures. कोई भी लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश ओनली, हर लैंग्वेज का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक जिससे वो मिलकर बनी होती है। सेम लाइक इंग्लिश है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जिसमें पहले लेटर्स आते हैं। लाइक लेटर्स सीरीज, लेटर में हमारे पास क्या आते हैं? वी हैव ए, वी हैव लाइक बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये लेटर्स होते हैं। नाउ लाइक लेट मी गिव यू वन मोर कॉन्सेप्ट्स हियर। लाइक ए बी सी डी जो हमारे पास होते हैं, लाइक अभी तक हम उसे अल्फाबेट्स कहते हैं। वी कॉल इट अल्फाबेट्स, ए बी सी डी ई, इन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं। इन एक्चुअल मीन्स, इन रियल मीन्स, if you browse through it on the grammar point of view, they are not alphabets. What they are letters. अगर ए बी सी डी लेटर्स हैं तो फिर अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट, लाइक अल्फाबेट्स आर द सेट ऑफ लेटर्स। जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू जेड होते हैं, तो जो इनका जो पूरा सेट बनता है ना, फ्रॉम ए टू जी, उन सारों को अल्फाबेट्स कहते हैं। ए बी सी डी सिंगल सिंगल वर्ड जो होते हैं, इन्हें हम लाइक लेटर्स कहते हैं। ये हमारे पास लेटर्स होते हैं। आफ्टर द लेटर्स, लाइक इट्स क्वाइट इजी, वर्ड्स कम्स फ्रॉम द लेटर्स। वर्ड्स किससे बनते हैं? हमारे पास लेटर्स से बनते हैं। Like I use BOI, boy, girl, house, home, school, fan, pen, laptop, mobile, keyboard, mouse, ये मेरे पास वर्ड्स बन गए हैं। जब मैंने लेटर्स को कंबाइन किया और उसको एक ऑर्डर दे दिया, सो उससे मेरे पास एक वर्ड बन गया है। द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वो हमारे पास वर्ड बन जाते हैं। अभी फ्रेज क्या होते हैं? द कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स विदाउट अ वर्ब, तो इट कैरीज फ्रेज, वो हमारे पास फ्रेज लेता है। लाइक फ्रेज मेरे पास क्या होता है? लाइक लेट मी गिव एग्जांपल। लाइक अगर मैं कहूँ ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये मेरे पास एक फ्रेज है। मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर, तो ये मेरे पास एक फ्रेज है। लाइक आई कैन से लाइक क्रिकेट टीम, ये मेरे पास दो वर्ड्स तो हैं, वर्ड्स तो मिल रहे हैं। क्रिकेट टीम, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, प्राइम मिनिस्टर, ये मेरे पास फ्रेज हैं। इन्हें मैं फ्रेज क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई डोंट हैव एनी वर्ब, इसमें मेरे पास कोई वर्ब नहीं है, कोई मेरे पास इसमें वर्ब नहीं ना। लाइक ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इसमें वर्ब नहीं है। एंड क्लॉज, लाइक देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। अभी फ्रेज एंड क्लॉज में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि क्लॉज कैरीज, अभी लाइक एज आई सर्कल दीज टू, इन सारों के जो बॉस होते हैं, इनके जो लाइक ये मास्टर होते हैं, ये दो होते हैं इन सारों को कंट्रोल करने वाले। व्हाई इन दोनों को मैंने मास्टर क्यों कहा, बॉस क्यों कहा? बिकॉज दे हैव अ स्पेशल वर्ड, इनके अंदर एक स्पेशल वर्ड आता है। वो स्पेशल वर्ड क्या होता है? दिस स्पेशल वर्ड इज वर्ब, वो स्पेशल वर्ड वर्ब होता है। इसी वजह से हमारे पास इसको प्रोनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको नहीं होती, इसको नहीं होती। इंग्लिश में कोई भी, यू विल नेवर गेट स्टक इन दीज थ्री, इन तीन में आप कोई भी नहीं बसेगा। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, बॉय गर्ल, स्कूल, एक्सेट्रा, ए बी सी डी, इसमें क्यों नहीं बसते? बिकॉज वी डोंट हैव एनी वर्ब, इसमें कोई वर्ब नहीं होता। डिस्टॉर्शन एंड कब क्रिएट होती है, हम कब फंसते हैं? व्हेन वी हैव अ वर्ब, जो हमारे पास एक वर्ब आता है, जो इन दोनों में होता है। क्लॉज एंड सेंटेंस में एक वर्ब का आना लाजमी होता है, लाइक अ फ्रेज में नहीं होता। लाइक देयर इज अ डिफरेंस व्हेन लाइक
somebody asked you that tell me what's the difference between clause and a phrase. A clause and a phrase में क्या difference होता है? So it's quite simple. You have to tell them like phrase is the combination of the words which give us a proper meaning but without having a verb. Phrase is a combination of a words which give us a proper meaning but they don't have any verb, without having any verb. And what do you think about the clause? Clause is also a combination of words giving a proper meaning, giving us a proper meaning. अभी clause क्या होता है? Clause भी एक combination of words होता है, phrase भी एक combination of words होता है. So what's the major difference? हमारे पास difference क्या रहा जब दोनों ही like combination of words हैं. The only one major difference is verb. आपने सिर्फ कुछ नहीं कहना, you just have to say verb, sir, verb. इसमें major difference है verb. Phrase is the combination of the words give us a proper meaning without having a verb. Clause is the combination of the verb give us a proper meaning and they include the verb. उसमें हमारे पास फिर verb आता है. Then comes the sentence. Like हमारे पास जो like and there's a difference. अभी minor सा difference होता है clause and sentence में भी. Sentence is the combination of the word giving us a proper meaning having a verb, and clause is also a combination of the word of the like words giving us a proper meaning but it might be like giving us a proper meaning and sometimes it's not. कभी कभार हमें ये proper meaning नहीं देता किसी चीज का, but sentence will also give you a proper meaning. ये हमेशा आपको एक proper meaning देगा because it includes a verb. And clause जब हम कोई sentence structure देखते हैं तो लाइक we'll cover it, वो हम आगे पढ़ेंगे. लाइक हमारे पास एक टेबल बनता है जिसमें हमारे पास 2 क्लोजेस 3 क्लोजेस एक सेंटेंस में आ सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में 3 क्लोज तो आ सकते हैं, लेकिन हाउ यू से लाइक 3 क्लोजेस में एक सेंटेंस, it's like impossible. So it's a major, ये मैंने आपको जस्ट उससे बताया है कि the importance of the verb. अभी ये वर्ब की है, लाइक अगर उसमें कोई वर्ब आ जाए तो उसे हम क्लोज एंड सेंटेंस कह सकते हैं. कोई एक से लेक लाइक वी हैव हमारे पास 10 लाइंस लिखी हुई हैं, उसमें कहीं भी वर्ब नहीं आया, सो उसमें से ये 10 के 10 लाइंस सेंटेंस है ही नहीं. बेसिकली वर्ब आएगा ही आएगा, बट अगर नहीं आया तो सेंटेंस है ही नहीं. लाइक here we have like it's a concept. Okay, we'll I just hit the time here. I crossed the limit from 1 hour. I just hit the 1 hour. It's a concept, it's a deep concept here about conjunction. ये हमारे पास एक deep concept है. It'll carries about ये time लेगा हमारा. Now if you have any question related to this session, you have like any doubt in your mind, you can ask me now. Just raise your hand, I'll unmute you. Yeah, Muhammad Awais, you can now turn on your mic if you have any question. First of all, I appreciate and I'm thankful you teach us better, and I just ask you that you teach us and the structure of sentence. You just teach us the structure of sentence, means not properly parts of speech or okay like okay yes I got your point. I got your point. You mentioned me that I only like gave you the sentence structure. As I mentioned you, okay, I'll come towards the part of speech. मैं part of speech पे भी आऊँगा, like you're talking about noun, pronoun, conjunction, etc. Isn't it? okay. I'll give you. उस पे मैं आऊँगा, but first of all let me clear the concept. मैं आपको mind पहले clear कर लूँ that you have to see the word in this way. आप किसी like जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, ओके ऑल राइट, जो पढ़ा है वो पढ़ा, बट नाउ यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग स्टाइल. आपको किसी वर्ड को देखना है तो आपने लाइक अगर मैं अभी आज से ही मैं वो स्टार्ट कर देता कि दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, मैं आपको ऑब्जेक्ट तो पढ़ा लेता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिर नहीं आते. जब मैं अभी ऑब्जेक्ट पे आऊंगा, सब्जेक्ट पे आऊंगा, नाउन पे आऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आपके माइंड को हिट करेंगे. जब मैं प्रोनाउंस करूंगा कि ऑब्जेक्ट, तो आपके माइंड में डायरेक्ट हिट करेगा, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, like object of preposition, object of verb, whether it's a transitive verb or intransitive verb को ये कर रहा है. So उसके लिए ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको रूल बताया जो आगे वाली स्लाइड्स में हमारे लाइक it will help us, ये हमें हेल्प करेंगे in the future. वो सारे हम करेंगे. You don't need to worry about this. Okay?
Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Now moving toward where we have, it's like Oppo A1K. You can ask me. Yes, sir. I want to ask you, can girls also apply for ISSB? Sorry, I didn't recognize it clearly. Can you speak a bit loudly? Can girls also apply for ISSB? Pre-engineering Uh, girls? I'm sorry, like the sir will guide you. We will like, sir, he will guide you in a proper minutes. In this class, I don't know about any ISSB etc. I'm sorry. Okay. Okay, thank you. Okay, here we have the next one, who is here we have like here trans TWINS. You can ask your question now. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes, sir, I'm a little bit confused in the difference of clause and sentence. So will you describe an example of these both? Okay. Let me clear it. Clause and sentence. देखिए, just give me in a simple words. मैं आपको simple word में बता दूंगा. Clause and sentences में हमारे पास क्या difference होता है? Basically, clause तो आपको पता है ना कि clause like एक उसमें verb आता है and sentence में भी एक verb आता है. But एक sentence structure में हमारे पास दो clauses हो सकते हैं. लाइक जैसे कि इधर मैंने एक मेंशन भी किया है आगे एग्जांपल्स में, इसी स्लाइड का पार्ट है, बट वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे. उसमें आपको क्लियर हो जाए कि जो क्लोज है इन सेंटेंस है वो हमारे पास किस तरह डिफरेंस है. क्लोज भी हमें डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन कुछ क्लोजेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास वो नहीं करते, एक डिफरेंट मीनिंग नहीं देते. लाइक अगर मैं कह दूं कि बॉट वेजिटेबल, आई यूज्ड बॉट वेजिटेबल, तो मैंने कहा है कि बॉट वेजिटेबल्स, लेकिन उसके पहले मेरे पास एक ऐसा रहना चाहिए कि हु बॉट वेजिटेबल, उसके एक सब्जेक्ट चाहिए होता है. इट्स नॉट गिव अस अ प्रॉपर मीनिंग, उसकी एक प्रॉपर मीनिंग नहीं है. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस होते हैं. इन सेंटेंस होता है, अगर मैं कह लूं कि आई बॉट वेजिटेबल, इट्स अ सेंटेंस. आई बॉट वेजिटेबल, इट्स अ सेंटेंस. बॉट वेजिटेबल, इट्स अ क्लॉज. वो एक क्लॉज है, उसमें सिर्फ बॉट वेजिटेबल आ रहा है. एक प्रॉपर सेंस नहीं है. सेंटेंस में एक प्रॉपर सेंस है उसकी. इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you very much. It's clear. एंड द सेकंड थिंग, जो सेंटेंस होता है उसमें एक से ज्यादा क्लोजेस आ सकते हैं. इट्स पॉसिबल. क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन. हु इज नेक्स्ट? मुमताज अब्बास, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Mumtaz Abbas, you can unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. Yeah, walaikum salam. Sir, my question is this, sir: how we can differentiate the simple, compound, and complex sentences? You are talking about a simple sentence, compound sentence, and a complex sentence. Nice question. Like ऊपर जितने भी मैंने mention किए हैं, I go to market, I have him. These are a simple sentence structures. ये हमारे पास simple sentence structures होते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे पास slides में आएंगे. You don't need to like in a hurry. Like you know, like hurry makes the curry. जल्दी का काम शैतान का होता है. बट देखिए वो हम सारा कवर करेंगे. बट नाउ लेट मी गिव, अगर मैं आपको भी जस्ट 2 वर्ड्स में बता दूंगा तो आप उसके एक रट्टा तो बना लेंगे. यू विल क्रैम इट. बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. मैं चाहता हूं कि आप समझें. अभी मैं आपको उसका एक लिटिल आइडिया दे देता हूं, बट उसको हम डीप में कवर करेंगे. हमारे कोर्स में वो शामिल है. सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई हमारे पास कंजंक्शन नहीं होता, विदाउट एनी कंजंक्शन. जिस सेंटेंस में हमारे पास कंजंक्शन आ जाता है वो हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है. अभी कंजंक्शन वाले कंपाउंड भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. जिसमें कंजंक्शन आ जाता है इसका मतलब उसमें 2 क्लॉजेस आ जाते हैं. जिसमें 2 क्लॉजेस आ जाते हैं इसका मतलब या तो वो सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है. अभी इसके रूल्स हैं कि कंपाउंड कब होगा और कॉम्प्लेक्स कब होगा. सो वो हम आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, Thank you, sir. बहुत शुक्रिया. okay, have a great time. Now moving toward the next one. Who is this? Okay, the Lights Galaxy A51. You can, okay, you can ask.
here. Okay. They just put down their hand. Okay, it's clear. You don't have any question at all in these slides. Okay, I think so. It's enough for today. If you have any question, you can ask me later on in the next slide, etc., related to the specific topic. And in this topic, we only covered the basics. अभी part of speech हमने start नहीं किए हैं. This only like the starting point. ये just वो आपको warm up करने के लिए था ना. आप जब जिम में जाते हैं तो first of all आप direct वो exercise नहीं start करते. First of all, you warm up your body. आप अपनी body को warm up करते हैं. After that, you start exercise, etc. तो भी जो main part of speech है वो भी हमने start नहीं किए हैं. But I just only give you the warm up session there. So I hope it will be clear. Thank you, Danish. Kindly आप गाइड कर दीजिएगा कि टोटल सेशंस कितने होंगे. हमने जो बेसिक ग्रामर कोर्स डेवलप किया है इसके टोटल सेशंस कितने होंगे? Okay, I think it will be like approximately 11 sessions, 11 to 12. 11 to 12. It means ये तकरीबन हमारे 3 weeks, 3 to 4 weeks. Yes, totally. आप प्लीज कंक्लूड करें, उसके बाद मैं फिर क्लास सेशन खत्म करता हूं. Okay, I think it don't we have Samra Iqbal. You can ask your question right now. We have one question. After that, we're going to move it. Yes. सर मैंने पूछना था कि एस या यस का इजाफा किसके साथ किया जाता है, कौन से वर्ब के साथ? Like as I gave you, like verb is dependent on the two things. Verb दो चीजों पे depend करता है. First one, verb depend on the subject, and the second word depend on tense. ऐसे ये आप तब लगेंगे जब आप उससे पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे. अगर सब्जेक्ट लाइक मैंने आपको कहा ना, सब्जेक्ट के साथ जब एस और ई एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है. वर्ब के साथ जब एस और ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है. तो जब आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो आप उसके साथ एस और ई एस पुट करेंगे. अगर आपने प्लूरल वर्ब लगाना हो, सो यू डोंट नीड टू पुट एनी एस और ई एस देयर. इज इट क्लियर? Okay, we have like a couple of last questions. After that, we have to hit the session. We have to end it up. After that, we have Saudullah. Your mic is on. You can ask your doubt right now. Kindly unmute yourself. Yeah. Sorry, Saudullah, would you want to ask something? Your voice is, I can't, okay, I think some network problem. We have last question here in the series. I think we have Salman Khan. Your mic is on. You can ask your doubt. सर मैं लेट आया था, आपने बताया होगा सर, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? Like phrase and clause, I give you a simple difference here. Is it the phrase and clause difference? Only one word. एक word का difference है. The word is verb. सिर्फ verb का difference है इनमें, और कोई भी difference नहीं है. Phrase is the combination of the words giving us a proper meaning without having any verb. Clause is a combination of the words giving us a proper meaning including the verb. Phrase words का combination होता है जो हमें proper meaning देता है. Sometimes it's not, लेकिन उसमें verb नहीं होता. Clause combination of words होता है जिसमें एक verb का आना लाजमी है. Phrase में verb नहीं होता, clause में verb होता है. Is it clear? Okay, so we have to conclude. Okay, we have one last question there. After that, we have to conclude it, confirm. We have here in Urdu, we have Gumnam. You can ask your doubt. Your mic is on. Assalamualaikum, sir. Sir, Yeah. can you please give any example of
phrase and clause. Like let me give you a phrase का example मैंने आपको दिया है. Like we have prime minister, एक word है like we have joint family, nuclear family, joint family, ऐसी family को कहते हैं. Like where they live like a lot of family members, जिसमें family members like मैं हूँ, मेरे parents हैं, साथ में मेरे पास मेरे cousins भी रह रहे हैं, वो like वो joint family होती है. Same like we have nuclear family जिसमें एक ही generation के लोग रहते हैं, like me, my father, my mother and my siblings. We are nuclear family. वो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है. तो ये वर्ड हैं, ये मेरे पास फ्रेजेस हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास कोई वर्ब नहीं होता. क्लोजेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास वर्ब आ जाता है. लाइक अगर मैं कह दूं कि दिस इज अ बॉय, लाइक ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय, ये हमारे पास एक सेंटेंस भी है एंड एक क्लॉज भी है. ही इज अ बॉय क्योंकि एक प्रॉपर सेंस भी तो दे रहा है ना, ही इज अ बॉय, उसमें एक वर्ब आ गया है. तो यू कैन आल्सो कॉल इट you can also call it a clause. लेकिन मगर अगर मैं ऐसे कर दूं कि he is a boy but like अगर मैं कह दूं कि he is a boy but she is a girl, he is a boy but she is a girl, तो ये मेरे पास दो सेंटेंसेस आ गए. दो सेंटेंस लाइक सॉरी आई हैव वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में मेरे पास ये दो क्लॉजेस आ गए हैं. he is a boy एक क्लॉज आ गया है, but she is a girl ये मेरे पास दूसरा क्लोज आ गया है. बट से पहले एक क्लोज एंड बट के बाद दो क्लोज. ये पूरा जो है वो एक सेंटेंस है. इज इट क्लियर? Okay, now I need your permission to go. Have a great time. Thank you. See you in the next session. Thank you, Danish. It was a wonderful session. और बाकी जो तमाम लोग इस क्लास में मौजूद हैं, होपफुली आप लोगों को भी समझ आया होगा. और ये जैसे स्टार्ट था, वार्म वेलकम था जो दानिश ने बहुत ज़बरदस्त लोगों को दिया है. ये फ्री क्लासेस का विजन बहुत बड़ा है. इसमें हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, डिफरेंट टीचर्स भी हैं. दानिश इज़ वन ऑफ द मेन रिसोर्स जो हमारे पास है, जो आपकी इंग्लिश क्लासेस को कंडक्ट करेगा. इसके अलावा मैथ की फ्री क्लासेस, इंग्लिश की फ्री क्लासेस, और कुछ दिनों में हम और भी फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, आपके पास आईडी पासवर्ड है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर करके मैंने तो पीएचडी कर ली है, तो मुझे पता आपने भी कर लेनी है. तो इसलिए देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप. सबको पता है 1 बजे हफ्ता इतवार कोई क्लास होगी, आपके पास आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, आपके पास लिंक है. इसी लिंक से, इसी पासवर्ड से, इसी आईडी से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. लेटर ऑन आज की क्लास में 100 लोग थे, अगली 3 से 4 क्लासों में ये बच्चे हो जाएंगे 25 से 30 या 15-18. जब ये 15-18 रह जाएंगे तो फिर हम देखेंगे, अगर हमने कोई ग्रुप भी बनाना हुआ, हमने वेब लिंक शेयर करना हुआ और आपके साथ बाकी रिसोर्सेज शेयर करने हुए. नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें इस क्लास में. इसका पर्पस सिर्फ ये है, ये क्लास इस वक्त 1000 बच्चा भी ले सकता था और 100 बच्चों ने भी ली है. तो दानिश ने जो अपना टाइम दिया है और मैंने अपना जो टाइम दिया है, या हमारी टीम ने अपना जो टाइम दिया है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 100 बच्चे हों क्लास में, 1000 बच्चे हों. तो ये वो चीज़ें हैं जो आज मेरी कोशिश है, मैं आपको ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. और यही टाइम है. आज सीख लेंगे तो ठीक है, नहीं सीख सकेंगे तो सारी उम्र धक्के खाएंगे. असूल याद रखना ज़िंदगी में, शॉर्टकट ऑफ सक्सेस सुनते हैं ना, तो इंग्लिश इज़ द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस इन पाकिस्तान. इंग्लिश इज़ द शॉर्टकट फॉर सक्सेस इन पाकिस्तान. ये आपको आज समझ आ गई, बहुत जल्दी कामयाबी आपके पास है. नहीं समझ आई, मैं खुद बहुत बड़ा दिदादा हूँ उर्दू का, मैं उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू किताबें मेरी, अपनी किताबें भी मेरी, भी खुद भी लिख रहा हूँ मैं, बहुत कुछ लिख, सब कुछ उर्दू में. लेकिन मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा है. तो बहुत से लोग जी हमारे इंग्लिश में सिलेबस हमें उर्दू में पढ़ना चाहिए, ये सब बहाने हैं. अगर आपने कुछ करना है तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्लासेस आपके सामने हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं. लेटर ऑन हम लोग इसके कहूट क्विज भी अरेंज करेंगे. दानिश आपके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके कहूट जो क्लासेस रिलेटेड वो भी हमने अरेंज करने, ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को गेमिफाई भी कर सकें. तो ये थी जी आज की क्लास. और जिन लोगों ने सवाल किया सर ISSB क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, तो ये जो क्लास हो रही है ये इंग्लिश की क्लास है. फ्री क्लासेस होती हैं. इसमें मुझे नहीं पता ISSB से क्या बनता है, पता नहीं किसने मेरा नाम लिख दिया, ISSB Academy, आई डोंट नो अबाउट इट. आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें. हाँ, उसकी क्लास होगी, मंगल को भी होती है, जुमे को भी होती है. कल नहीं हो सकी ड्यू टू सम इमरजेंसी. और इसके अलावा भी डेमो सेशंस आपके साथ ग्रुप में शेयर होते रहेंगे.
तो ये था जी आज का सेशन, बहुत ज़बरदस्त। आपने 2 घंटे, अगर ये क्लास ना हो रही होती तो यकीनन ये 1.5 घंटा आपने ऐसे ही ज़ाया करना था, जैसे मैं और आप बाकी वक्त ज़ाया करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।